ہم باحیا قوم ہیں، ہم شرم و حیا کا درس دینے والے ہیں، ہم بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی اور بیویوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے دو بڑے تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا اور دوسرا عید الفطر کا، یہ ہمارے بڑے تہوار ہیں۔ ہم معزز خاندانوں کے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ کی عزتیں ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں ہیں، ہم مسلمان عزت و حیا والے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے سامنے نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو، لشکروں کو روک دیا جائے، لیکن نوجوانوں کے قافلے جب وہاں سے گزر رہے تھے آنکھیں جھکا جھکا کے گزر رہے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس حاتم کی بیٹی آئی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، آپ علیہ السلام نے نوجوانوں کے ساتھ اس کو بھیجا، ادھی کے پاس بھیجا۔ ادھی کہتے ہیں میری بہن آپ کی عزت تو محفوظ ہے نا؟ وہ کہتی ہے میرے بھائی اتنا شرم و حیا میں نے آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جتنا میں نے مسلمانوں میں دیکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے جو اپنے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں، جو بندے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے ہیں، جو ساری کائنات سے زیادہ سپر پاور اللہ کو سمجھنے والے ہیں، ساری کائنات سے زیادہ جو لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان آیات میں اللہ نے ان کے معاشرے کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو معاشرہ ہے، ایسے لوگوں کی جو سوسائٹی ہے وہ بڑی ہی پاک صاف ہوتی ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی خوشی غمی، ان کے لین دین کے معاملات، یہ بڑے ہی صاف ستھرے اور پاک دامنی والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو ان کے اندر بے حیائی اور برائی کو داخل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے ان آیات میں ایمان والوں کے جو معاشرے کی تصویر بیان کی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو وہ تصویر بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ وہ ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی راہ پہ چل رہی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، سہولت کے حوالے سے یا آرام یا اور جس لحاظ سے بھی کوئی نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں، بازار میں یا گھروں میں یا ہماری جیبوں میں یا ہاتھ میں، اسی طرح فائدہ اٹھانے والے ان چیزوں سے بہت اچھا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نقصان جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں وائرس ڈالا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو مستقبل میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے بے حیائی، برائی کو میڈیا کے ذریعے سے پھیلانا۔ یہ موبائل ہے، یہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے اور جتنی بھی ایپس ہیں، ان سے ہم بہت اچھے اچھے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو دیکھنے میں صورتحال آ رہی ہے، فائدہ اٹھانے والے کم ہیں اور نقصان کی زد میں پھنسنے والے زیادہ ہیں۔ یہ فروری کا مہینہ ہے، آج فروری کی 12 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد 14 فروری آنے والا ہے۔ اس 14 فروری میں بے حیائی اور فحاشی کو پورا عروج دیا جائے گا۔ 14 فروری کو لوگ بے حیائی اور
बेगैरती की आखिरी दहलीज पे पहुंच के लड़कियों को तोहफे तोहफ देते हैं, फूल देते हैं। याद रखिए, अगर आज हम दूसरों की बेटियों को फूल देने के प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारी बेटियों बहनों को भी कोई फूल देने के प्रोग्राम बना रहा होगा। और अगर आज हमारी बेटियां महफूज हो भी जाएं तो जो खराबियां हमने की होंगी उसका कर्ज आज नहीं तो कल हमारी बेटियां देंगी। बेटियां अगर बच गई तो पोतियां देंगी, पोतियां ना सही तो नवासियां बन जाएंगी। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि हम इस हवाले से पहले ही अपना दिफा पकड़ लें और अपने बच्चों को समझाएं। जो मेरे नौजवान भाई तशरीफ फरमा हैं, अगर आप भी उसके साथ मुंसलिक हैं, मीडिया के साथ, आप इस पैगाम को आगे फैलाएं कि मुसलमानों का मुआशरा हया वाले लोगों का मुआशरा है। ये शर्म और हया का दर्स देने वाले लोग हैं और ये बेटी की इज्जत को समझते हैं, मां बहन की इज्जत करवाना जानते हैं। हम कभी भी बेहयाई को और बेगैरती को या बेशर्मी को अपने मुआशरे में दाखिल नहीं होने देंगे और इसका बेहतरीन दिफा अगर कर सकते हैं तो हमारे ये नौजवान कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको अपने इस काम के लिए इस्तेमाल फरमा ले। आमीन। तो इसलिए ये 14 फरवरी जो आ रहा है इसमें बहुत सारी खराबियां होती हैं। इसको वैलेंटाइन डे के नाम से याद किया जाता है, बेगैरती के नाम से। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। आमीन। याद रखिए, ये जो दिन मनाया जाता है और इसमें जो ये बेहयाई और बेगैरती के काम होते हैं, याद रखिए ये गुनाहों की या तो इब्तिदा होगी या फिर जो इसमें कदम रख चुके हैं उनकी इंतहा हो जाएगी। इसी से ही खानदानों की जंगें खत्म नहीं होती। इसी से ही बूढ़ा बाप जो सारी जिंदगी रब से औलाद मांगता है, बुढ़ापे में उसकी चादर की हिफाजत करते करते कमर झुक गई है, अब वो अपनी चिट्टी और सफेद चादर को, इज्जत वाली चादर को महफूज करने के लिए कोशिशें करता है। वो बेचारा बूढ़ा बाप अपनी इज्जत का दिफा कर रहा है और नौजवान उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए ये गुनाह की इब्तिदा है। ये जो दिन इसको अप्रोच किया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, उरूज दिया जा रहा है, हमें इसका पूरा कोशिश करके इसका खात्मा करना चाहिए। और इस दिन को हम वैलेंटाइन डे के नाम से नहीं बल्कि इस दिन को हम शर्म और हया के नाम से मौसूम करें। हमने इस दिन लोगों को सबक देना है कि ये शर्म और हया का दिन है। हम लोगों को पैगाम शर्म और हया देंगे। लोगों, शर्म पैदा करें, हया को आम करें। आज बेहयाई आम है, बाप का हया नहीं है, माँ और बेटी का हया नहीं है, बहन का हया नहीं है, बच्ची का हया नहीं। हमें हया का दर्स आगे लोगों को फैलाना चाहिए। तो पहला काम यह समझने का है कि यह गुनाह की इब्तिदा है और दूसरी चीज हया है। हमें अपने अंदर हया पैदा करना चाहिए, अपने बेटों में हया पैदा करना चाहिए, अपने दोस्तों को हया का दर्स देना चाहिए। अगर हम उनको हया का दर्स देंगे, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारी कॉलोनी, हमारी कौम, हमारे दोस्त अहबाब हया वाले बनेंगे। और अगर किसी को बेहयाई के काम से रोकेंगे नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता वो वायरस हमारे अंदर भी आ सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़मनुली सित्तन, लोगों मुझे 6 चीजों की गारंटी आप लोग दे दो, 6 चीजों की जमानत आप लोग मुझे दे दो, जाओ मैं तुम्हें अल्लाह का पैगंबर हो के जन्नत की जमानत दे देता हूं। 6 चीजें कौन सी हैं? आपने फरमाया, उसदुकू इदा हद्दस्तुम, जब भी बात करोगे सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। वऔफू इदा वअदतुम,
जब वादा करोगे तो वादे को पूरा करोगे। और फरमाया वअद्दू इदा उतमिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाएगी तो उसकी खयानत नहीं करोगे। और चौथे नंबर पर फरमाया वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे। वगज़्ज़ू अबसारकुम, और अपनी आंखों को झुका के रखोगे, अपनी आंखों में हया पैदा करोगे। वकुफ्फू ऐदियकुम, और छठी चीज अपने हाथों को बुरे कामों से बचा के रखोगे। अगर ये 6 काम तुम लोग मुसलमानों कर लो, अल्लाह के पैगंबर ने जन्नतों की बशारतें पहले से ही नवाज दी हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। और इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हया के मुतालिक कि हम अपनी नजरों को झुका के रखें, हम अपने अंदर हया पैदा करें, शर्म पैदा करें। इसी हवाले से वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपनी सवारी पे तशरीफ रखते हुए जा रहे थे। पीछे एक नौजवान बैठा हुआ था, सहाबी रसूल है, नौजवान है, बड़े खूबसूरत नौजवान है। आप अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई मसला पूछने के लिए। वो नौजवान देखी जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम की जैसे ही नजर उसके ऊपर पड़ी, आपने हाथ को पीछे हटाया, उसकी ठोड़ी से पकड़ के उसका चेहरा घुमा दिया। अब इसमें दर्स है हम बड़ों के लिए, अपने बच्चों में, अपने साथियों में, अपने बेटों में, अपने शागिर्दों में और अपने मुलाजमों में हम हया पैदा करें। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो खिलाफ शरा है, हम उनका ध्यान दूसरी तरफ बट दें, उनका ध्यान तकसीम कर दें, साइड पे उनकी तवज्जो हटाएं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। और हया के मुताल्लिक तीसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हमें कि हम रास्तों में बैठें। रास्तों में बैठने से अल्लाह के नबी ने हमें मना फरमाया, लोगों रास्तों में ना बैठा करो। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी मालना बुद्दुम मिन मजालिसिना, अल्लाह के नबी हमारे पास रास्तों में बैठने के अलावा कोई चाराए कार नहीं है। हमने रेड़ी लगानी होती है, हमने सौदा सलब बेचना होता है, हमने कुछ मीटिंग्स करनी होती हैं, या बाज़ औक़ात हमारे घरों में बैठने की जगह नहीं होती, इसलिए हमने मशवरा मशावरत करनी होती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों रास्ते में बैठने से बचो। अगर तुम्हारा इसके बगैर गुजारा नहीं होता तो फिर रास्ते के हक अदा करो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी रास्ते के हुकूक क्या हैं? आपने फरमाया रास्ते के हुकूक ये हैं, रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज हो उसे हटाओ, और इसी तरह अगर कोई खारदार कांटेदार झाड़ी है उसको हटाओ, और इसी तरह गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी नजरें झुका के बैठना है। यह ना हो कि हर आते जाते को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो। आंखों में हया हो, नजरें झुका के रखें। अगर वाकई तुम्हारी मजबूरी है तो मजबूरी की सूरत में भी अल्लाह के रसूल ने अगर इजाजत दी तो फरमाया रास्ते में बैठते वक्त ये हक अदा करना, इसका ख्याल रखना कि बैठते वक्त अपनी नजरों को झुका के रखना है। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुका, आपने फरमाया हर दीन के अंदर अखलाक बताया गया है, और इस्लाम के अंदर अखलाक क्या है? इस्लाम के अंदर अखलाक हया को बयान किया गया है। हया हया हो, गुफ्तगू में हया हो, बातचीत में हया हो, नजर में हया हो। अखलाक उसी का अच्छा है जिसकी नजर में हया हो, सिर्फ जुबान का मीठा हो, नजरों में जहरे कातिल हो, ये हया नहीं है। हया ये है हमारी गुफ्तगू में अगर हया हो तो हमारी नजरें भी झुकी हो।
इसीलिए हयादार बच्चे जब भी अपने माँ बाप से बातें कर रहे होते हैं आंखें झुका के बातें कर रहे होते हैं, और अपने उस्ताद से बात करते हैं तो आंखें झुका झुका के, नजरें फाड़ फाड़ के नहीं देखते। सहाबाए किराम की मिसालें मौजूद हैं। सहाबी रसूल बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मैंने बड़ा अरसा गुजारा है, लेकिन उनकी शख्सी वजाहत, उनकी इज्जत की वजाहत मेरे ऊपर इतनी थी कि मैं कभी भी आंखें भर के आपका दीदार कर ही नहीं सका, आंख नहीं उठाने की जसारत कर सके। अल्लाह हमें भी ये हया पैदा नसीब फरमाए। इसी तरह हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो ये हया का दरस है, हया का दरस। हया गुफ्तगू में भी हो, देखने में भी हो, बैठने में भी हो, रास्ते में बैठते वक्त भी हो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो जुबान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखना आंखों की हिफाजत करना जुबान से ज्यादा जरूरी है। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया, लोगो जब तुम रास्ते में बैठे हो कहीं बअम्र मजबूरी, अगर तुम्हारे पास से कोई औरत गुजर रही है, फरमाया जब तक वो औरत गुजर ना जाए तुमने आंखें ऊपर उठा के भी नहीं देखना। इतना सख्ती वाला हुक्म है हमारा इस्लाम देता है। 14 फरवरी के हवाले से चीजें, उनमें से तीसरी चीज, पहली चीज मैंने कहा कि गुनाह की इब्तिदा होती है इससे, और दूसरी चीज हया का खात्मा होता है, जो कि हमारे लिए हया बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज वो ये कि बेहयाई को इससे फरोग दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि ये ईसाइयों का काम है, ये यूरोपियों का काम है, या ये काफरों का काम है, वो बड़े बेहया हैं। हम उनकी बात अपनी जगह रखते हैं, लेकिन जो हम मुसलमानों का मुआशरा है, हम बिलखुसूस अपने पाकिस्तान की अगर बात करें, उसमें मेरा और आपका इसमें क्या किरदार है, ये हम सब के लिए सबक है। हमने इस बेहयाई को, बेगैरती को और बेशर्मी को रोकने में क्या किरदार अदा किया है। वो काफिर तो चाहते हैं नौजवान नस्ल को, जो बिलखुसूस मुसलमानों की है, इनको या तो बुरूद के जरिए उड़ा दिया जाए या इस वायरस के जरिए उड़ा दिया जाए। वो तो ये चाहते हैं। हमारे लिए सबक ये है कि हम इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। लोगों, हम बाहया कौम है, हम शर्मो हया का दरस देने वाले हैं। हम बेटियों की, माओं की, बहनों की और बीवियों की इज्जत करने वाले लोग हैं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। और इसी तरह इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ वल ईमानु, फरमाया हया और ईमान ये दोनों इकट्ठी रहने वाली चीजें हैं, दोनों इकट्ठी रहने वाली चीजें हैं। और याद रखिए, जब हया चला जाए तो ईमान को भी खतरा होता है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न मिन कलाम नबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता। पहले अंबिया दावत देते रहे, तबलीग करते रहे, शर्मो हया का दरस देते रहे, लेकिन जब लोगों ने मानना ना चाहा, लोग सीधी राह पे आने को तैयार ना हुए, या जो बेशर्मी और बेहयाई की हदों को क्रॉस कर चुके थे, तमाम अंबिया बिल आखिर ये कहा करते थे, इन्न मिन कलाम नबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तहजी फस्ना मा शिता। जब बंदा हो ही बेशरम, जब बंदा हो ही बेगैरत, तो उसने करना ही क्या है। तमाम अंबिया ये बात कह गए। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरात, चौथा काम जो हमें इससे बचना चाहिए वो ये कि हमें अपने दिल में अपनी इज्जत का अगर दर्द है, अपनी हमसाए की बेटियों का और हमसाए भाई की बेटियों का, उसकी इज्जत का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये जो 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे है, ये बेशर्मी का दरस है। ना हमें अपनी बेटी का एहसास होगा, ना पड़ोसी की बेटी का एहसास होगा।
इसलिए ये बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, जिसको रोकना हम सब का फर्ज है। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमानों के दो बड़े त्योहार हैं, एक ईद उल अजहा का और दूसरा ईद उल फितर का। ये हमारे बड़े त्योहार हैं, और काफिरों के त्योहार को सपोर्ट करना और काफिरों के त्योहार को आगे नशर करने में अपनी एमबी लगाना, अपने पैसे लगाना, अपने स्कूलों में प्रोग्राम रखना और बेटियों को नचाना और हमारी तालबात को डांस करवाना, ये मुसलमानों का मुआशरा नहीं है। अगली बात यह है कि ये एक फजूल खर्ची है। अभी से तैयारियां हो रही होंगी, बाजारों में फूल ला के रखे जाएंगे, ये कार्ड ला के रखे जाएंगे, इस तरह के कारोबार करने वाले कारोबार करेंगे। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों ये जो हराम काम के लिए आप कारोबार को करते हो, फरमा जो काम हराम है उसको ये देने वाली चीजें भी हराम है, ऐसा कारोबार भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग अपने बच्चों को अइम्मा और मुहद्दिसीन की नजर में हराम की खुराक खिला रहे हैं, जो ऐसे गिफ्ट ला के रखते हैं जो बेहयाई का सबब बनता है। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। और वैसे भी अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं ये कोई छोटे मोटे मुजरिम नहीं है, ये शैतान के भाई हैं, शैतान के रिश्तेदार हैं। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। मुहद्दिसीन ने और हमारे अइम्मा दीन जो बड़े बड़े गुजर गए, उन्होंने तो इस हवाले से बड़ा साफ तौर पे कह दिया कि ये बेहयाई का दिन है, बेशर्मी वाला दिन लोग जो मनाते हैं, लिहाजा ये मनाना बिल्कुल हराम है। किसी के लिए ये चीजें तैयार करना बिल्कुल हराम है, किसी के से ये चीजें लेना बिल्कुल हराम है, और ऐसी चीजें बाजारों में ला के रखना बिल्कुल हराम है। और इमाम इब्ने तैमिया ने भी फरमाया, इमाम अलबानी का भी यही फतवा है, इमाम वकी का भी यही फतवा है, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन हमें ये फतावा जात पहले से दे गए, और सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती गुजरे हैं। इमाम सालेह अल उसैमीन, उनके फतावा अल उसैमीन के अंदर भी उन्होंने भी ये फतवा दे रखा है। और हमारे जो करने के काम है इस वक्त वो हम समझे, अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहला काम जो हमारे करने का इस वक्त, वो हम अपने बच्चों को, अपने मुलाजमों को, अपने मातहतों को, अपने शागिर्दों को ये सबक रटवा दें कि हम शर्मो हया के पैकर लोग हैं, हम शर्मो हया का दरस देने वाले हैं। हम अपने बच्चों में, बच्चियों में और अपने प्यारों में हया और शर्म पैदा करने वाले लोग हैं। ये बेशर्मी और बेहयाई मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों का त्यौहार है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरा काम, वो सोशल मीडिया के जरिए से जो फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हैं, दूसरी चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं, वो इन चीजों के जरिए से इस पैगाम को पहुंचाएं और उस बेशर्मी का रद्द करें। और मज़ामीन लिखने वाले जो मुतबस्सिरीन हैं या कलम निगार, जो कालम निगार होते हैं, वो कालम के जरिए से उम्मत को पैगाम पहुंचाएं। और खुतबा और उलमा मिंबर और मेहराब के जरिए से जहां तक गली कूचों में जहां बैठते हैं अल्लाह के फजल करम से, वो भी ये काम कर रहे हैं। हम सबको जहां तक हो सके अपनी ये खिदमात पेश करनी चाहिए। और तीसरा काम इस हवाले से, अगर हमारी मजलिस में या हमारी महफिल में या हमारी गली में या हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी महफिल लगी हुई है जहां पे इसको सपोर्ट किया जा रहा है, ये बेहयाई और बेशर्मी को आगे फैलाया जा रहा है, हम उसको रोकें। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर ने फरमाया, लोगों तुम में से जो बेहयाई को, बुराई को और मुनकर काम को देखे वो अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, जुबान से रोके, उनको समझाए, उनको नसीहत करे, उनको तज़कीर से काम ले। अगर ये काम भी नहीं कर सकता तो कम अज कम वहां से उठ के चला जाए। तो ये तीसरा काम है हमारे करने का। और इसी तरह चौथा काम जो हमारे करने का इस वक्त है वो ये कि ये बुराई का काम है, हम इस बुराई के काम में किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे।
آپ لاکھوں روپیہ خرچ کریں تب بھی مجرم ہیں، اگر کوئی اس میں 1 روپے کی MB خرچ کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، برابر کے شریک ہیں۔ گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، گناہ گناہ ہی ہے، زنا چھوٹا ہو بڑا ہو، زنا زنا ہی ہے، چوری بڑی چیز کی ہو چاہے چھوٹی چیز کی ہو، چوری چوری ہے۔ اس لیے ہم معزز خاندانوں کے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ کی عزتیں ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں ہیں، ہم مسلمان عزت و حیا والے لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے سامنے نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو لشکروں کو روک دیا جائے، لیکن نوجوانوں کے قافلے جب وہاں سے گزر رہے تھے آنکھیں جھکا جھکا کے گزر رہے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس حاتم بن ابی بلتہ کی بیٹی آئی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، آپ علیہ السلام نے نوجوانوں کے ساتھ اس کو بھیجا، ادھی کے پاس بھیجا۔ ادھی کہتے ہیں میری بہن آپ کی عزت تو محفوظ ہے نا؟ وہ کہتی ہے میرے بھائی اتنا شرم و حیا میں نے آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جتنا میں نے مسلمانوں میں دیکھا ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں، اللہ ہمیں وہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اسی طرح 5واں کام جو اس حوالے سے ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ کہ اس موقع پہ مبارکباد بھی نہیں دینی، نہ کسی سے مبارک لینی اور نہ کسی کو دینی۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو نصیحت کرے، ہمیں نصیحت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ کام ہے میرے بھائیوں جو ہمارے اس وقت کرنے کے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم شرم اور حیا کا درس دینے والے ہیں، اپنے لیے بھی مردوں کے لیے بھی شرم اور حیا کا درس ہے۔ اللہ جہاں پہ نظر جھکانے کا حکم دیتے ہیں وہاں پہ پہلے ایمان والے مردوں کو حکم ہے، غضوا من ابصارکم، لوگوں اپنی نظریں جھکا کے رکھا کرو، اپنی نظروں کے اندر شرم و حیا پیدا کرو۔ بیٹی سے بھی ہمیں شرم ہو، ہمیں ہمارے دل میں بیٹی کا حیا ہو، اپنی بہن کا حیا ہو، اپنی ماں کا حیا ہو، بیوی کا حیا ہو، اپنی ساس کا حیا ہو، ہمیں اپنے پھوپھوؤں کا حیا ہو، ہمیں اپنے خونی رشتہ داروں کا حیا ہو، ہمیں اپنے محلے داروں کا حیا ہو اور اپنے مسلمانوں کی عزتوں کا حیا ہو۔ یہ چیزیں ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اسلام کے ماننے والے ہمارے یہ چٹی داڑیوں والے بزرگ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، ہماری مائیں بھی ہمیں درس دیتی ہیں، ہماری خالائیں بھی ہمیں سمجھاتی ہیں۔ اس لیے اپنے دل میں اپنے ذہنوں میں ہم حیا پیدا کریں، اپنے بچوں کو حیا کا درس دیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو حیا کا درس دیں، اور اپنے ملازموں کو، اپنی محفل میں بیٹھنے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، سب کو ہم حیا کا سبق دیں، حیا کا درس دیں۔ اگر حیا کا درس آج ہم دیں گے ہماری چادریں محفوظ ہوں گی، ہماری بیٹیاں محفوظ ہوں گی، ہماری بیویاں محفوظ ہوں گی، ہماری عزتیں اور چادریں محفوظ ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اگر آج کسی کی عزت اور کسی کی چادر میں اگر ہاتھ ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے، یاد رکھیے یہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی نہ کبھی ادا ہو کے رہے گا۔ آج ہماری بیٹی یہ قرض ادا کرے گی، ہماری بیٹی بچ گئی تو آگے پوتی کا نمبر آ جائے گا یا نواسی کا نمبر آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آج ہم آنے والی نسل پہ یہ احسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی ناموس کو اور اپنی توقیر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حیا کا درس دینا ہوگا اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہوگا اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہوگا، اپنے شاگردوں کو اور اپنے ملازموں کو بھی بچانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن و سنت کا ترجمہ اہل دل کو ہے پیغام، عزیزی میڈیا پاکستان قرآن و سنت کا ترجمہ، عزیزی میڈیا پاکستان، عزیزی میڈیا